Hare Krishna. Thank you, dear Ritesh Prabhu, Narti Mataji, Krishna Prabhu for leading the chanting. Pranam dear devotees, Jai Shri Prabhupada. Let's start Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namaham Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. आज हम again we can do in Hindi today's session. Let me share the link. आज कोई सिंग करना चाहेगा हमारे प्रेयर्स कुंदमाला स्तोत्र. हरे कृष्णा प्रभु. मैं ट्राई करती हूँ. आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बट आई विल ट्राई. यस, जितना भी आपसे होता है उसके बाद में आई कैन टेक ओवर. सो ये हम 31 से 40 वर्सेस 10 वर्सेस पढ़ रहे हैं इस पूरे हफ्ते श्री मुकुंदमाला स्तोत्र से, श्री कुलशेखर आलवार के द्वारा रचित, और श्री प्रभुपाद ने हमें इनका काफ़ी सुंदर ट्रांसलेशन पर दिया है. सो या विल रीड फ्रॉम 31 to 40. यस. शत्रुच्छेद एकमन्त्रं शकल उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम संसारोच्चैत मंत्रम समुचित तमस संग निर्याण मंत्रम सर्वेश्वरेक मंत्रम व्यसन भुजग संदष्ट संत्राण मंत्रम जिह्वे श्रीकृष्ण मंत्रम जप जप सततं जन्म साफल्य मंत्रम व्यामोह समौषधं मुनिं मनोवृत्ति प्रवृत्ति औषधं दैत्यान्द्रिति कर औषधं त्रिभुवने संजीवनीकौषधं भक्ता भक्तायन्ते हितौषध औषधं भवभया प्रवत्यं सनेकौषधं श्रेया प्राप्तिकर औषधं पिबमना श्रीकृष्ण दिव्यौषधम् कृष्णाददीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मनसा राजहंसा प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते चेतसचिन्तय कीर्तयस्य रसने मर्मीभव त्वं शिरो हस्त्वा अञ्जलि सम्पुटं रचयितं वन्दस्व दीर्घं वपु आत्मनं संशरय पुण्डके पुण्डारिके नयनं नाग. How would we say this word, Prabhu? नागचलेन्द्र स्थितं नागचलेन्द्र स्थितं दयन् ध्यायं पुण्यात्मनं तदेव परमं देवहि सिद्धये. Maybe you can take from here, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Anybody else would like to try? 35. Prabhuji, can I Yes. also try? Yes, absolutely, Ritesh Prabhu. Very nice. Yes. Shrinavan Janardhan Katha Guna Kirtanani Deha Nayasa Pulakotagama Roma Raji Nodapatyat E Nayanor Vimalambu Mala Tiktasya Jivatam Aho Purushathamase. Prabhuji, I don't think it's very hard. I'm so sorry.
अंधासे में हरता विवेका महाधनासे कोरा प्रपोपलभीर इंद्रिय नमो नमधियाए मोहंदा कुपा कुहारे वनिपतासये देवस्य दिहि कृपंसा करवल्लभम् इदं श्रीराम सता संधि जय जर्जरम् पताते अवास्यं परिणाम परिसलम् किम् औषधं प्रचासि मुदा दुर्मते निर्मायं कृष्ण रसायनं पिबा आश्रम इदं धी मनुष्यलोके सुधं प्रतीये विषं पिबन्ति निमामि नारायण गोचरणी तया कर्वे विचाय कुहा पठन्ति. Prabhuji, can you scroll up? Yes. Thank you, Prabhuji. त्यजन्तु बन्धवः सर्वे मिन्दन्तु गौरवो जना तथापि परम आनन्दो गोविन्दो मम जीवनम् सत्यं ब्रवीमि मनुजा स्वयं उवधा बहुर्यो यो मुकुन्द नरसिंह जनार्दनीति जीवो जपति अनुदिने मरनेरिना वा प्रसन्नाकस्त सत्रासे तदत्ते अभिशतम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. Hari Bol. Hare Krishna. Thank you so much for making Thank the you attempt, trying. जी. I This is mean, like our humble offering to the lotus feet of the Lord, and then the Lord accepts it and He arranges it because we are not qualified anyway to offer Him anything because everything belongs to Him. So all these words, all these verses also belong to Him, right? And we are just offering it humbly with in our capacity, and He accepts when we offer it with love and devotion. Yes, thank you so much for Prabhuji, doing it. when you were doing it and when Mataji was doing it, I was reading it. I thought it would be easy, but when I started doing it myself, I don't know what happened, but it sounded very uh, hard. But Yeah. when you are doing it, we can repeat like when you repeat the two sentences and then we repeat or sing along with you. It Hmm. seems easy, but when there's no one behind, like then it feels like we are totally lost in the words. Although when after you have said the words, you know it that it's not the right one. But thank you, Prabhuji, for giving me the opportunity, and thank you for guiding us. Thank you, Prabhu. Yes, okay. So आज हम हिंदी में करेंगे तो I will translate this into Hindi and then कोई पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन 31 से प्रभु जी 40. मुझे पढ़ना है, अगर और कोई नहीं पढ़ रहा तो आई कैन ट्राई. हाँ माता जी. यस 31 31 से 40. यस. Hare Krishna, Aarti Mataji, you're so cute. थैंक यू We're माता looking forward to hear you. जी. हरे कृष्णा. हे जीवा, श्री कृष्ण के नामों से बने मंत्र का निरंतर जप करो. ये समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला उपनिषदों के प्रत्येक शब्द द्वारा पूजित मंत्र, संसार को जड़ से मिटाने वाला, अज्ञान के समस्त अंधकार को दूर भगाने वाला, अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति का, संसारिक कष्टों के विषैले सर्प द्वारा डसे हुए लोगों को स्वस्थ करने वाला तथा इस संसार में जन्म लेने वाले को सफल बनाने वाला मंत्र है. 32. हे मन, कृपा श्री कृष्ण की महिमा की दिव्य औषधि पी लो. ये मोह के रोग के को दूर करने, ऋषियों को ध्यान में मन लगाने के लिए प्रेरित करने तथा शक्तिशाली दैत्य राक्षसों को पीड़ा पहुंचाने के लिए उत्तम औषधि है. तीनों लोगों को पुनः जीवन प्रदान करने तथा भगवान के भक्तों पर असीम कृपा करने के लिए ये अकेली औषधि है. वास्तव में ये एकमात्र औषधि है जो व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व के भय को नष्ट कर सकती है तथा व्यक्ति को परम कल्याण की प्राप्ति की ओर ले जा सकती है.
33। हे भगवान कृष्ण, इस समय मेरे मन के राजहंस को अपने चरण कमलों की उलझी हुई शाखाओं में प्रवेश करा दीजिए। मृत्यु के समय जब मेरा गला बलगम, पित्त और वायु से अवरुद्ध हो जाएगा, तब मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। 34। हे मन, उस कमल नेत्र वाले भगवान का ध्यान करो जो पर्वत जैसे अनंत नाग पर विराजमान है। हे जीवा, उनकी महिमा करो। हे सिर, उन्हें प्रणाम करो। हे हाथ, अपनी हथेलियां जोड़कर उनसे प्रार्थना करो। हे शरीर, उन्हें प्रणाम करो। हे हृदय, उनकी पूर्ण शरण लो। हे वे परमेश्वर सर्वोच्च देवता हैं। वे ही सर्व मंगलकारी और परम पवित्र करने वाले हैं। वे ही शाश्वत सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। 35। जो मनुष्य भगवान जनार्दन की लीलाओं और गुणों का वर्णन सुनकर भी आनंद से रोंगटे खड़े नहीं करता और जिसके नेत्रों से शुद्ध प्रेम के आंसू नहीं बहते, वह मनुष्य सचमुच ही सबसे पति तुष्ट है। उसका जीवन कितना निंदनीय है। 36। हे प्रभु, मेरी इंद्रियों के शक्तिशाली चोरों ने मेरी सबसे कीमती संपत्ति, मेरी विवेक शक्ति को चुराकर मुझे अंधा कर दिया है और उन्होंने मुझे मोह के घोर अंधकारमय कुएं में फेंक दिया है। हे प्रभुओं के प्रभु, कृपया अपना हाथ बढ़ाएं और इस दुखी आत्मा को बचाएं। 37। इस शरीर की सुंदरता क्षणभंगुर है और अंत में शरीर को मृत्यु के मुंह में ही जाना ही है। जब इसके सैकड़ों जोड़ बुढ़ापे के कारण अकड़ जाते हैं, तो मूर्ख तुम दवा क्यों मांग रहे हो? बस कृष्ण अमृत ले लो, एक ऐसा इलाज जो कभी विफल नहीं होता। 38। मानव समाज में सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि लोग इतने असंयमी हैं कि वे भगवान नारायण के नामों के जीवनदायी अमृत को अस्वीकार कर देते हैं और इसके बजाय अन्य सब कुछ बोलकर जहर जहर पीते हैं। 39। मेरे सभी सगे संबंधी मुझे त्याग दें और मेरे वरिष्ठ मेरी निंदा करें, फिर भी परम आनंद में गोविंद ही मेरे प्राण और आत्मा है। 40। हे मानव जाति, मैं अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर सत्य कहता हूँ। जो कोई भी मनुष्य प्रतिदिन मुकुंद, नरसिंह और जनार्दन के नामों का जप करता है, चाहे वह युद्ध में हो या मृत्यु का सामना करते समय, उसकी सबसे प्रिय महत्वाकांक्षाएं पत्थर या लकड़ी के टुकड़ों से अधिक मूल्यवान नहीं होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू आरती माता जी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने हिंदी में एज ऑलवेज। और ये जो लास्ट आपने पढ़ा अभी, तो कुलशेखर आलवार कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मानव जाति, सभी के लिए, हम सभी के लिए कह रहे हैं, अपनी भुजाएं, अपने हाथ ऊपर उठाकर सत्य कह रहे हैं। और भगवान के भक्त हमेशा जहाँ भी होते हैं वो भगवान के साथ ही होते हैं, भगवान के धाम में ही होते हैं। तो भगवान के धाम में बैठ के, भगवान के पास बैठ के जब वो ये कह रहे हैं कि हमें प्रतिदिन भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, अंत सार सभी भक्तों का, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सभी का यही सार है कि हमें भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। तो ऐसा ही कल हम देख रहे थे, श्रीला प्रभुपाद जो उनके पास जो भक्त आ रहे थे, उन सभी से यही चीज़ बोल रहे थे, राइट, कि आप जो कर रहे हैं आप करते जाइए। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको आप आर्टिस्ट रहना, आपको वो छोड़ना नहीं है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, मेडिकल पर्सन है, तो आपको वो छोड़ना नहीं है। और अगर आप कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, हमें वो छोड़ना नहीं है। बस हमें सिर्फ भगवान को हमारे साथ जोड़ना है। और वो कैसे जोड़ सकते हैं? भगवान के नामों के द्वारा। क्योंकि इस कलयुग में भगवान कली काले नाम रूपी कृष्णावतार, नाम के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं कलयुग में। तो प्रभुपाद जी कल हम पढ़ रहे थे अध्याय 17 में, वही सभी भक्तों को सिखा रहे हैं कि भक्ति कैसे की जाती है, हमें कुछ छोड़ना नहीं। अर्जुन का उदाहरण देके बता रहे थे कि अर्जुन एक क्षत्रिय था, तो उसको उसको हाँ, भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम सब छोड़ दो, त्याग दो, राइट। बस उसने
जो आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय का धर्म निभाओ, लेकिन भगवान की आज्ञा का और भगवान के वचनों का पालन करते हुए निभाओ। तो वही उनका सार था। कल मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी का, जो जो भक्त कल आए यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमारे साथ कुलपति माधव प्रभु हैं लुइविल से। आरती माता जी, आपका मैसेज बहुत ही सरल, सुंदर और एकदम भावपूर्ण था। तो हमने प्ले किया था कल यहाँ पे सभी भक्तों के सामने। पंडित श्रीवास प्रभु का भी मैसेज आया था आपका, जो भी बाकी आए, मीनू माता जी, रितेश प्रभु, लोग जो भी कल आ पाए, नलिन प्रभु, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल का ये जो पढ़ा हमने और फिर कल जो हमने सुना गुरु महाराज की गुण लीलाएं, इससे काफ़ी मिलती है। बिकॉज गुरु महाराज का एक एक शब्द, एक एक उनकी जो आ, दिनचर्या थी, सब कुछ श्री प्रभुपाद से ही प्रेरित थी। तो जैसे हम कल देख रहे थे, श्री प्रभुपाद जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, उसी तरह से गुरु महाराज ने भी प्रचार किया है। जिस तरह से श्री प्रभुपाद कल बोल रहे थे कि अगर कहीं पे पूरी धरती पे मंदिर बनाने की कोई जगह है तो यहाँ अमेरिका में है। वैसे ही प्रभुपाद ने गुरु महाराज को आदेश दिया था कि भारत में अगर कहीं मंदिर बनेंगे तो दिल्ली में बनेंगे। और गुरु महाराज ने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 18 मंदिर बनाए हैं दिल्ली में। बाकी पूरे जगत में 250 के आसपास मंदिर उनकी प्रेरणा से बने हैं और कितने सारे सेंटर्स बने हैं। तो एक एक चीज़ जो कल हम प्रभुपाद के बारे में देख रहे थे, और कैसे उन्होंने वो माइक ग्रैंड की पत्नी को कितने सरल भाव से पूछते थे कि आप भगवान का नाम का जप करते हो? तो वो बोलती है ना, हाँ कभी कभी करती हूँ। तो बोले अच्छी बात है, करते रहना चाहिए, राइट। तो वैसे ही गुरु महाराज भी वैसे ही हमेशा अपने जो भी उनसे मिलते थे, जैसे मैंने पंडित शास्त्रों का भी एग्जाम्पल देखा, वो बता रहे थे कि उनकी जपा के बारे में उनसे बहुत क्लोज उनका उनकी यादें हैं गुरु महाराज से। तो और गुरु महाराज की जो सुबह की साधना थी, मंदिर की पूजा सेवा करना, भगवान के विग्रहों का आ, अर्चना करना, जप करना, अपने खुद के विग्रहों का करना, तो वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे। श्री प्रभुपाद भी ऐसे ही कल बता रहे थे कि 24/7 हमेशा भगवान से जुड़े हुए हैं। चाहे वो लिख रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट हमेशा भगवान से जुड़े हुए हैं। वैसे ही उनके जो परम बच्चे थे, सारे जो प्रभुपाद के शिष्य गण हैं, आज हमारे जो गुरु वर्ग हैं, वो सब प्रभुपाद से यही सीख लेके अपने अपने तरीके से अपने अपने आ, आ, जगहों पे प्रचार कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर थी। और ये भी जो प्रभुपाद लास्ट में बोल रहे हैं कि दुनिया भर में मंदिरों के बारे में वो बात कर रहे थे। और वही अगेन गुरु महाराज का वही था कि पूरी दुनिया भर में उन्होंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया। वो कभी हारे नहीं, कि वो बता रहे थे प्रभुपाद की अभी हमें बहुत आगे जाना है, लेकिन वो बहुत धैर्यवान हूँ मैं, कि मैं पेशेंट हूँ। तो वही यही क्वालिटी गुरु महाराज में भी दिखी, जो कि पिछले 50 साल से गुरु श्री प्रभुपाद के जाने के बाद उन्होंने पूरे विश्व में इतने सारे मंदिर बनाए, और एकदम पेशेंस के साथ में, और सभी भक्तों को समय देते हुए। जैसे माइक बता रहे थे कि मैं जब मिला श्री प्रभुपाद से, तो मुझे ऐसा लगा कि बाकी जो अन्य आर्टिस्ट जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उनसे जब मिलता था तो ऐसा लगता कि वो भागने में थे, उनका उनका पर्पस कुछ और था। लेकिन यहाँ पे जब श्री प्रभुपाद से मिले, तो उन्हें लगा कि पूरा जैसे समय ठहर गया हो, राइट। और प्रभुपाद के पास इतना समय था उनके लिए, और अंत में उनके पास समय नहीं था प्रभुपाद से बात करने के लिए। उनके सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल गया, सिर्फ वो एक ब्रीफ इंटरेक्शन में। तो वैसे ही होता है शुद्ध भक्तों के साथ में जब हम रहते हैं, तो समय जैसा ठहर जाता है, और उनके लिए समय इतना विस्तार हो जाता है समय कि उनके पास इतना समय होता है। हमको लगता है कि अरे इतने समय में क्या होगा, लेकिन उनके लिए वही 24 घंटे, लेकिन उस 24 घंटे में वो इतने महान कार्य कर जाते हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो सब भगवान की भक्ति के, शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। तो वैसे ही गुरु महाराज भी इतने बिजी थे, 50,000 से ज़्यादा शिष्य हैं पूरे जगत में, ट्रैवल करते थे जब भी जाते थे, पूरे दिन से रात तक हमने दिनचर्या देखी थी उनकी। और जब मैं जब था उनके पास, तो देखते थे तो ऐसा लगता है कि रात के 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10:30, 11 बजे तक भक्त आते जा रहे हैं। गुरु महाराज सबको समय दे रहे हैं, और समय दे रहे हैं सबसे ऐसे बात कर। लेकिन वो भले ही 1 मिनट या 2 मिनट का ही उनका डिस्कशन हो, वार्तालाप हो, लेकिन उसमें वो भक्त इतने संतुष्ट हो जाते थे, जैसे जैसे कि सालों से वो गुरु महाराज की शरण में ही हैं। तो बस वो उनकी एक झलक से ही हमें हमारी तृप्ति हो जाती थी। तो ऐसे ऐसे उनकी
पावन उनकी दृष्टि थी। तो वैसे ही शिला प्रभुपाद की भी यहाँ पे हमने जब कल पढ़ा तो वही मुझे याद आ रहा था। कल गुरु महाराज का तिरुभाव दिवस था तो ठीक है, तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। प्रभुपाद उम्मीद थी, ठीक है मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। प्रभुपाद को उम्मीद थी कि वॉइस लेख में उनके अमेरिकी चर्च के बारे में कहा गया है। उनके व्याख्यानों और कीर्तनों में जान थी और कम से कम उन्हें नियमित रूप से कुछ अनुयायी मिल रहे थे। लेकिन भारत से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सुमति मोरारजी, अपने गुरु भाइयों और भारतीय केंद्रीय सरकार के साथ पत्र व्यवहार जारी रखा था, लेकिन उनके जवाब उत्साहजनक नहीं थे। इस विश्वास के साथ ही पद्मपत सिंघानिया मैनहट्टन में कृष्ण मंदिर के लिए उनकी योजना से सहमत होंगे और इसके निर्माण के लिए धन्य मुहैया कराएंगे। प्रभुपाद ने विदेशी मुद्रा जारी करने की मंजूरी के लिए नई दिल्ली से याचिका दायर की थी। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली को पत्र लिखा था। मैं इस सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं भारत से कुछ आदान प्रदान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि विस्मृति के इन दिनों में ईश्वर से प्रेम करने की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी दुनिया में अच्छी संभावनाएं हैं। एक महीने बाद भारतीय बैंक ने उन्हें वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से भारतीय केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री को अपना अनुरोध फिर से प्रस्तुत करने की सलाह दी। प्रभुपाद ने उन उसका अनुपालन किया और एक और महीना बीत गया। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उनके एक गुरु भाई ने लिखा था कि स्वामी जी को भारत वापस आकर सरकार की मंजूरी लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद अभी अमेरिका नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने सुमति मोरारजी को लिखा, मैं भारत की यात्रा करने और फिर से वापस आने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, खास तौर पर इस कारण से कि मैं ऊपर दिए गए पते पर सप्ताह में 3 बार कक्षाएं आयोजित कर रहा हूँ और कुछ अमेरिकी युवाओं को संकीर्तन और भगवान की भक्ति सेवा के मामले में प्रशिक्षित कर रहा हूँ। उनमें से कुछ बहुत ईमानदारी से सबक ले रहे हैं और भविष्य में वे कठोर मानकों के अनुसार बहुत अच्छे वैष्णव बन सकते हैं। एक दिन एक जिज्ञासु अनचाहा संवाददाता ने भारत से प्रभुपाद को पत्र लिखा। उसका नाम मुक्ति ब्रह्मचारी था। प्रभुपाद के एक गुरु भाई के शिष्य के रूप में अपना परिचय देते हुए प्रभुपाद को अपने पिछले मामूली परिचय की याद दिलाते हुए मुक्ति ने अमेरिका में प्रभुपाद से जुड़ने की अपनी उत्सुकता के बारे में लिखा। निश्चित रूप से प्रभुपाद को अभी भी भारत में अपने गुरु भाई से सहायता मिलने की उम्मीद थी। यह मिशन केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसलिए उन्होंने मुक्ति को अमेरिका आने के लिए आमंत्रित किया और उनसे कहा कि वे अपने गुरु से अनुरोध करें कि वे विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करके सहयोग करें। मुक्ति ने जवाब में लिखा, अपनी उत्सुकता की पुष्टि करते हुए लेकिन संदेह व्यक्त करते हुए कि उनके आध्यात्मिक गुरु उन्हें अनुमति देंगे। मुक्ति ने सोचा कि उन्हें पहले संयुक्त राज्य अमेरिका आना चाहिए और फिर अपने आध्यात्मिक गुरु से मदद मांगनी चाहिए। प्रभुपाद नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत जवाब भेजा, क्या अमेरिका में प्रचार करना मेरा निजी मामला है? श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रीला रूप रघुनाथ के संदेश के प्रचार केंद्र के रूप में विदेशों में कुछ मंदिर बनवाना चाहते थे और मैं दुनिया के इस हिस्से में ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसा तैयार है और अवसर खुला है। अगर वित्त मंत्री से मिलकर यह काम आसान हो सकता है तो इसमें इंतजार क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप अपने गुरु महाराज से सहयोग के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको डर है कि आपकी यात्रा रद्द हो जाएगी? कृपया ऐसा ना सोचें। हर चीज को शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का काम समझें और जरूरी काम करने की कोशिश करें। एक पल के लिए भी यह न सोचें कि मेरी रुचि आपके गुरु महाराज से अलग है। हम अपनी क्षमता के अनुसार शिला प्रभुपाद की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। एक संयुक्त प्रयास कहीं बेहतर होता। शिला रूप गोस्वामी और शिला रघुनाथ दास गोस्वामी 16वीं शताब्दी में भगवान चैतन्य के 2 प्रमुख शिष्य थे। मुक्ति ने अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिन्होंने
जैसा कि मुक्ति ने भविष्यवाणी की थी, यात्रा रद्द कर दी। हालांकि मुक्ति के गुरु शिला प्रभुपाद के गुरु भाई थे, लेकिन वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे और उन्हें संदेह था कि प्रभुपाद को वास्तव में पद्मपत सिंघानिया से दान मिलेगा। और अब मुक्ति ब्रह्मचारी को भी संदेह हुआ, यदि आपका कार्यक्रम प्रामाणिक नहीं है तो किसी बड़े व्यक्तित्व के प्रति आपका दृष्टिकोण निस्संदेह हास्यास्पद होगा। जिस दिन प्रभुपाद को यह हास्यास्पद पत्र मिला, उसी दिन उन्हें भारत सरकार से असहयोग का अंतिम झटका भी मिला। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव प्रकाश शाह ने लिखा, विदेशी मुद्रा की मौजूदा स्थिति के कारण भारत सरकार के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के आपके अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है। आप शायद अमेरिका में रहने वाले लोगों से धन जुटा आपको शायद अमेरिका में रहने वाले लोगों से धन जुटाना चाहिए। यह तय हो गया था, प्रभुपाद को बिना किसी बाहरी मदद के काम करना होगा। वे न्यूयॉर्क शहर में अकेले ही काम करते रहेंगे। मुक्ति ब्रह्मचारी को लिखे उनके आखिरी पत्र से उनकी गहरी आस्था और दृढ़ संकल्प का पता चलता है। इसलिए विवाद अब समाप्त हो गया है और किसी और की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। हम प्रचार कार्य में अपने प्रयासों में हमेशा सफल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी असफलताएं निश्चित रूप से हास्यास्पद नहीं है। निरपेक्ष क्षेत्र में सफलता और असफलता दोनों ही गौरवशाली हैं। यहाँ तक कि भगवान नित्यानंद ने भी पहले प्रयास में जगाई और मधाई को धर्मांतरित करने में असफल होने का नाटक किया, बल्कि वे ऐसे प्रयास में व्यक्तिगत रूप से घायल हो गए, लेकिन यह निश्चित रूप से हास्यास्पद नहीं था। पूरी बात परलौकिक थी और यह सभी संबंधित पक्षों के लिए गौरवशाली थी। अगर कृष्ण चेतना कभी अमेरिका में फैलती है तो उसे भारतीय सरकार या भारतीय वित्त पोषकों की सहायता के बिना ही ऐसा करना होगा। एक भी भारतीय ब्रह्मचारी उनके साथ नहीं जुड़ेगा। कृष्ण प्रभुपाद को अपनी योजना एक अलग तरीके से बता रहे थे। सिंघानिया अनुमोदन योजनाएं पूरी होने और उनके पीछे रहने के बाद प्रभुपाद अपनी सारी ऊर्जा अपने बौरी मचान में उनके पास आने वाले युवा पुरुषों और महिलाओं की ओर मोड़ देंगे। उन्होंने सुमति मुरारजी को लिखा, मैं अब स्थानीय मित्रों और प्रशंसकों का एक निगम बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसका नाम होगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इनकॉर्पोरेटेड। अपने सभी मित्रों और प्रशंसकों से प्रभुपाद ने अपने रूममेट डेविड एलन को सबसे ज्यादा व्यक्तिगत ध्यान और प्रशिक्षण दिया। उन्हें लगा कि वे डेविड को अमेरिका का पहला सच्चा वैष्णव बनने का एक खास मौका दे रहे हैं। प्रभुपाद अंततः भारत लौट आए और वे डेविड को वृंदावन ले जाना चाहते थे। वे उसे मंदिर की पूजा सिखाएंगे और भविष्य में पश्चिम में प्रचार के लिए प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने सुमति मुरारजी से अनुरोध किया था कि वे डेविड के साथ साथ खुद के लिए भी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था करें। आप इस अमेरिकी लड़के को देखकर प्रसन्न होंगे। वह एक अच्छे परिवार से आया है और इस संस्कृति की एक ईमानदार आत्मा है। यहाँ मेरी कक्षा में अन्य लोग भी हैं, लेकिन मैं उनमें से केवल एक को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, प्रभुपाद ने एक शाम अपने व्याख्यान में कहा, कि हमारे श्री डेविड कभी कभी कहते हैं, स्वामी जी, मैं तुरंत अपना आध्यात्मिक जीवन बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभुपाद डेविड की तत्परता की नकल करते हुए हंसे। धैर्य रखें, धैर्य रखें। मैंने उनसे कहा, यह अवश्य होगा। जब आपके पास ऐसी इच्छा होगी तो ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। वे आपके भीतर हैं। वे केवल यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कितने ईमानदार हैं। फिर वे आपको अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के सभी अवसर देंगे। पहले डेविड और स्वामी बड़े हॉल में शांतिपूर्वक साथ रहते थे। स्वामी विभाजन अपने हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके काम करते थे। डेविड पूरे बड़े खुले स्थान में घूमते रहते थे। हालांकि डेविड ने मारिजुआना, एलसीडी और एम्फेटामिन लेना जारी रखा और प्रभुपाद के पास इसे
सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई बार उन्होंने डेविड से कहा कि ड्रग्स और मति भ्रम उसके आध्यात्मिक जीवन में मदद नहीं करेंगे, लेकिन डेविड विचलित दिखते थे। वह स्वामी से अलग हो रहा था। लेकिन प्रभुपाद की योजना थी कि मचान को मंदिर के रूप में इस्तेमाल किया जाए, इसे न्यूयॉर्क के राधा कृष्ण के पहले मंदिर में बदल दिया जाए, और उन्हें डेविड का सहयोग चाहिए था। हालांकि यह पड़ोस दुनिया हालांकि यह पड़ोस दुनिया के सबसे दयनीय इलाकों में से एक था। प्रभुपाद ने जयपुर या वृंदावन से देवताओं को लाने और मंदिर की पूजा शुरू करने की बात की, यहाँ तक कि बॉवेरी पर भी। उन्हें लगा कि डेविड मदद कर सकता है। आखिरकार वे रूममेट थे, इसलिए डेविड के सहयोग न करने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन उसे अपनी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। प्रभुपाद डेविड की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेविड बहुत परेशान था। वह विनाश की ओर बढ़ रहा था, और प्रभुपाद की योजनाएं भी उसी तरह की थीं। कभी कभी नशे के प्रभाव में न होते हुए भी वह मचान के चारों ओर चहलकदमी करता था। अन्य समय वह गहरे विचारों में डूबा हुआ दिखाई देता था। एक दिन एलसीडी की खुराक लेने के बाद वह पूरी तरह से पागल हो गया। जैसे कि कार्ल यर्गेंस ने कहा, वह बस पागल हो गया और स्वामी को एक पागल आदमी से निपटना पड़ा। चीजें इस ओर से चीजें इस ओर ले जा रही थी। वह एक पागल बच्चा था जो हमेशा बहुत ज्यादा पीता था, लेकिन असली पागलपन अचानक हुआ। स्वामी जी शांतिपूर्वक अपने टाइपराइटर पर काम कर रहे थे। तभी डेविड घबरा गया। डेविड विलाप करने लगा और मचान के बड़े खुले क्षेत्र में इधर उधर घूमने लगा। फिर वह चिल्लाने लगा, चीखने लगा और इधर उधर भागने लगा। वह वापस उस जगह गया जहाँ स्वामी थे। अचानक प्रभुपाद ने खुद को डेविड के सामने नहीं पाया। अच्छा डेविड जिसे अच्छा डेविड जिसे वह वृंदावन में ब्राह्मणों को दिखाने के लिए भारत ले जाना चाहते थे, बल्कि एक नशे में धुत, जंगली आंखों वाली अजनबी एक पागल आदमी के सामने पाया। प्रभुपाद ने उससे बात करने की कोशिश की, क्या बात है? लेकिन डेविड के पास कहने को कुछ नहीं था। कोई खास असहमति नहीं थी, बस पागलपन था। प्रभुपाद तेजी से सीढ़ियों की 4 मंजिलों से नीचे उतरे। उन्होंने अपना कोई भी सामान समेटने या यह तय करने की यह तय करने के लिए भी नहीं रुके कि वे कहाँ जाएंगे या वापस आएंगे या नहीं। किसी भी चीज पर विचार करने के लिए उनके पास समय नहीं था। उन्हें काफी झटका लगा था, और अब वे डेविड के पागलपन के अखाड़े से बाहर निकल रहे थे। दरवाजे पर हमेशा की तरह आवारा लोगों का समूह बैठा हुआ था, और अपनी शिष्टाचार पूर्ण हरकतों के साथ उन्होंने उसे जाने दिया। वे बुजुर्ग स्वामियों के आने जाने, खरीदारी करने और वापस आने के आदी थे, और वे उन्हें परेशान नहीं करते थे। लेकिन वे आज खरीदारी करने नहीं जा रहे थे। वे कहाँ जा रहे थे उन्हें नहीं पता था। वे बिना यह जाने कि वे कहाँ जाएंगे सड़क पर आ गए थे। हरे कृष्णा। So we'll stop here for today. Yes, किसी का कोई थॉट्स, रिफ्लेक्शन, विचार आज के रीडिंग से? देखते हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं सबको, लेकिन जो जो लोग जुड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो डेविड आलन हैं, वो प्रभुपाद के साथ ही रहते थे, राइट। लेकिन जो प्रभुपाद जी ने हमें, जो हम दीक्षा लेते हैं इस्कॉन में, तो जो 4 नियम हैं जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहे गए हैं, right, जो धर्म के स्तंभ हैं, वो हमें फॉलो करने चाहिए। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स: नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। तो ये 4 चीजें जहाँ पे हम देख रहे हैं, डेविड भगवान का नाम तो जरूर ले रहे थे, राइट, लेकिन साथ साथ में ड्रग्स भी ले रहे थे और मदिरापान भी कर रहे थे, राइट। तो एक तरह से आप, इट्स लाइक एन ऑफेंस। हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम घोर पाप भी कर रहे हैं। तो उससे हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो रुक जाती है, या ठहर जाती है, सीमित हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, और साथ साथ में हमें इन 4 नियमों का भी पालन अच्छे से करना चाहिए।
तो सब ये चारों चीज़ें हमें हमारे जो इंद्रियां हैं उन्हें पवित्र कराती हैं, और हमारा जो मन है वो भगवान के नामों से, भगवान के जाप से पवित्र होता है। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है, और दोनों दोनों एक ट्रेन की पटरी के जैसे हैं। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह का पूजन करते हैं, दोनों, हमें प्रभु कह रहे थे, दोनों पटरी के समान है। वैसे ही ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं आध्यात्मिक जगत में प्रगति के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद कैसे आ, इतने मुश्किलों से गुजर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये एक सच्चा बच्चा है जो एक अच्छा वैष्णव बन सकता है, लेकिन वो देख रहे हैं कि वो भी भटक भटक रहा है, राइट। अभी तक भक्ति के मार्ग पे पूरी तरह से चल नहीं पाया था, और प्रभुपाद को वो जगह छोड़ के जाना पड़ा एक बार, निकल निकल के वहां से, और उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जाएंगे। तो कितने परीक्षाएं, कितने टेस्ट भगवान ने उनके जीवन में प्रस्तुत किए, लेकिन शिला प्रभुपाद अ, का जो अटूट विश्वास था भगवान पे, अटूट विश्वास था अपने गुरु महाराज पे, कि नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है तो किसी अ, उद्देश्य से भेजा है, और जो भी भगवान कराना चाहते हैं वो कराएंगे, ये वही करता है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो इसी भाव से श्रील प्रभुपाद डटे हुए हैं, और देख रहे हैं कि सभी इंडिया में अभी भी कोशिश जारी है उनकी, सबसे वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सहयोग नहीं आ रहा है। लेकिन उनका सहयोग उनके गुरु महाराज से और भगवान कृष्ण से है, वहीं से उनका योग है, और वहीं पे वो जुड़े हुए हैं। तो हम कल देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन आज का अ, आज के इस रीडिंग से ये काइंड ऑफ समरी थी। एनीबडी एल्स, किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। लाइक जैसे इसमें बोला है कि डेविड जो वो पागल हो रहा था क्योंकि उसको नशा करना था। मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि नेक्स्ट क्या हुआ होगा। वो नशा से फ्री हुआ होगा या फिर मतलब भाग गया छोड़ के। लेकिन हाँ, प्रभुपाद जी की कितनी स्ट्रगल रही स्टार्टिंग से, जब लाइक इंडिया में भी उनकी लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस आ रहे थे। उसके बाद वो जो उनकी जर्नी यूएस में, यूएस आने के टाइम जो शिप में रही, 2 हार्ट अटैक हुए। देन आफ्टर यहाँ यूएस आने के बाद भी कितनी सारी स्ट्रगल की उन्होंने, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए, हिप्पीस को हैप्पी बनाया। मैं सोच रही हूँ वो हिप्पीस भी कितने लकी होंगे, लाइक वो प्रभुपाद जी मतलब से मिल पाए। और कृष्णा की कितनी मर्सी रही कि मतलब एक प्योर डिवोटी के एसोसिएशन में आके वो हिप्पीस से हैप्पीस में कन्वर्ट हो गए। और या हम में हमारी लाइफ में छोटे से चैलेंजेस आते हैं, हम घबरा जाते हैं। प्रभुपाद जी ने कितनी एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी डेविड से कि हाँ मैं जाके इंडिया में मिलवाऊंगा, और फिर जब वो होप टूट गई फिर भी नहीं वो घबराए। कि मतलब उन्होंने एक पल भी नहीं ये सोचा कि ये तो पूरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है प्लान। लेकिन मतलब अपने वो फोकस्ड रहे प्रीचिंग में और कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने में। तो इससे ये इंस्पिरेशन मिलती है कि लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस, जितनी भी स्ट्रगल आए, लाइक हमको फोकस रहना है। हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ के नहीं जाना है। कई लोग जैसे बीच में इस्कॉन में भी छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग जो नए नए भी ज्वाइन करते हैं। तो हमको फोकस्ड रहना है कि हमको कृष्णा कॉन्शियस ही रहना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, समराइज किया। माता जी, आपने जो अभी लास्ट में कहा ये चीज़, कल प्रेम विलास प्रभु गुरु महाराज का विल पढ़ रहे थे। गुरु महाराज का जो विल है, गुरु महाराज की जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस थे, 10 10 शिक्षाएं जो उन्होंने सभी भक्तों के लिए छोड़ी हैं, वो एक्चुअली पूरे इस्कॉन के लिए एक टेम्पलेट है। तो बाकी महाराजस ने भी यही कहा कि ये, अगर ये 10 शिक्षाएं सब अपने जीवन में उतार लें तो सभी का उद्धार हो जाए। और तो उसमें गुरु महाराज यही चीज़ें कहते हैं कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको बैठ के वैष्णव तरीके से उसे सुलझाना है, और हमें इस्कॉन को नहीं छोड़ना है। गुरु महाराज की हर एक शिक्षा में आप देखेंगे, वो 10 की 10 शिक्षा में
श्रील प्रभुपाद का नाम है या इस्कॉन का नाम है या जीबीसी का नाम है, बिकॉज जीबीसी प्रभुपाद कहते थे कि वो मेरा शरीर है और सबसे मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है गवर्निंग बॉडी कमीशन इस्कॉन की। तो उससे हम देखते हैं कि गुरु महाराज का मन कहाँ था, हमेशा श्रील प्रभुपाद के चरणों में, कि प्रभुपाद इस्कॉन और जीबीसी के अलावा उनके जीवन में और कुछ नहीं था। तो यही चीज़ जो आपने लास्ट में कही कि हमें कुछ छोड़ के भागना नहीं है, ये छोटी छोटी परेशानियां आएंगी, इससे विचलित होके हमें छोड़ना नहीं है, भक्ति को नहीं छोड़ना है, भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ना है, श्रील प्रभुपाद को नहीं छोड़ना है, और श्रील प्रभुपाद की इस सुंदर जो संस्था है इस्कॉन उसको नहीं छोड़ना है। तो ये गुरु महाराज की भी आ, शिक्षाएं थी हम सबके लिए। यस माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू कुलपति सो माधव मच प्रभु है प्रभु। यहाँ पे। कुलपति प्रभु माधव प्रभु, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक्स प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबको मैं नहीं बोलूँगा कि आई एम फॉर्चुनेट कि कल मैं आ पाया यहाँ पर, और गुरु महाराज जी के लिए हम तिरुभाव का सेलिब्रेट कर पाए। तो इट्स माय फॉर्चुनेट एंड टू बी हियर इन दिस कॉन्ग्रीगेशन, स्पेशली इस सिंसिनेटी से ही पास में था हमारे। जब मेरे बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे थे, बोलना भी नहीं चाहते थे, जानते थे, तब भी इस सिंसिनेटी आते थे वो। और इट्स इन रूट्स जो हमें मिला वो यहीं से मिला है। तो ऑल ग्लोरीज टू इस सिंसिनेटी ग्रुप, ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू सिंसिनेटी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। थैंक यू सो मच कुलपति माधव प्रभु, अनुकंपा माधवी माता जी एंड मनित भवित, पूरा परिवार यहाँ पे आए और हमें अपना एसोसिएशन दिया कल के प्रोग्राम में। और जो डिवोटीज नहीं आ पाए वो भी सब यहाँ पे हमारे साथ ही थे इन स्पिरिट। सो आई थैंक एवरीबडी वंस अगेन, that may we all be sheltered by the grace of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj and by the grace of all the ISKCON Guru Varga who are sincerely following in the footsteps of their spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. Thank you all. Anybody else? किसी और को कुछ कहना है? प्रभु जी, हाँ, जो डेविड का नाम बीच में आया है वह मैं बहुत आई एम रियली वेरी क्यूरियस टू नो कि नेक्स्ट क्या हुआ होगा। लाइक उन्होंने वो ड्रग्स लेना छोड़ दिए या फिर मतलब क्या रहा होगा नेक्स्ट। तो आई कांट वेट टू रीड मोर, अदरवाइज मैं अभी गूगल करूंगी। पता नहीं, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हुआ होगा नेक्स्ट, जैसे वो रहता है ना मूवीज में नेक्स्ट क्या हुआ होगा नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो। यस, ऑफ कोर्स आप पढ़ सकते हैं माता जी। और ये तो नित्य लीला है श्री प्रभुपाद की। ये कभी ऐसे भगवान की लीलाएं हैं, हम कितना भी पढ़े उन्हें एक बार नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें बार बार प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो वैसे ही है ये लीलाएं, कभी मंडे लेवल की नहीं है कि हमें ये नीरस नहीं है, हमेशा इनमें रस रस आता रहेगा। तो आप पढ़ सकते हैं और फिर हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन या विल कंटिन्यू टुमारो, विल सी व्हाट हैपेंस। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और थैंक यू वो प्ले करने के लिए मैसेज। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच टू यू एंड माता जी। थैंक यू सो मच। कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा। Okay, so we'll end with Vaishnava Pranam prayers. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Great day, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna.